everyone. I'm your host رخسانہ ایمینول اور آپ دیکھ رہے ہیں بی دا لائٹ چینل. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 8 مارچ خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. آج اسی پروگرام کے تحت ہم فریئر ہال میں موجود ہیں. آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مختلف مقامات پر مختلف لوگ مختلف تنظیموں کے ساتھ اپنے اپنے الگ الگ پروگرام منا رہے ہیں. ہم بھی یہاں پہ خواتین کے ساتھ موجود ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ خواتین آج کے دن کیا سوچتی ہیں اور آگے مستقبل میں خواتین کے لیے ان کے پاس کیا کیا منصوبے ہیں. ویورز، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت فریئر ہال میں موجود ہیں اور یہاں پہ دوسری بہت سی خواتین کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، حقوق نسواں کے لیے کام کرنے والی، اور ان کی معجد ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم شیما کرمانی. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. آئے دیکھتے ہیں کہ ان کا آج کی خاتون کے بارے میں کیا خیال ہے. وہ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کی خاتون جو کہ بہت زیادہ محنت کر کے اپنے حقوق کے لیے لڑ کے جدوجہد کر کے وہ سمجھتی ہے کہ وہ معاشرے میں ایک مقام پا چکی ہے. آئیے ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کی خاتون جو ہے وہ کتنی آزاد ہے اور اس کے پاس کتنے حقوق ہیں اس معاشرے میں آگے بڑھنے کے لیے. جی میم. شکریہ آپ کا. دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ عورت مارچ ہم سب عورتوں کے لیے ایک تحریک ہے، ایک موومنٹ ہے، اور یہ ہمارے حقوق کی بات ہے. یہ ہمارے معاشرے میں جو ایک بہت ہی شدید قسم کا پدرشاہی معاشرہ ہے، جہاں پہ عورتوں پر بہت تشدد ہے، جہاں پہ ٹرانس لوگوں پہ بہت تشدد ہے، جہاں پہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کا ریپ ہو جاتا ہے، جہاں پہ بوڑھی عورتوں کا ریپ ہو جاتا ہے، جہاں پہ ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایسے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہو، تم اس ٹائم پہ کیوں باہر نکلی ہو. ریاست بھی ہمیں یہ باتیں کہیں تو ہم بہت اب احتجاج کر رہے ہیں کہ ہم بہت تنگ آ گئے ہیں ان چیزوں سے. ہم ایک ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جہاں ہم بھی انسان سمجھے جائیں، جہاں ہم بھی ہمیں سارے ہمارے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ ہمیں ملیں اور ہمیں ایک ایکول سٹیزن مانا جائے اس معاشرے میں. یہ مقصد ہے ہمارا. اچھا میم، آپ نے ابھی بتایا کہ جو ایک ورکنگ وومن ہے وہ بھی ابھی تک اسٹرگل کر رہی ہے، ابھی تک مکمل طور پہ آزاد نہیں ہے، وہ خوش نہیں ہے اپنی اس آزادی میں ہونے کے باوجود بھی ابھی بھی وہ بہت سی پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہے. تو ان حالات میں آپ کیا سمجھتی ہیں جو گھروں میں رہنے والی خواتین ہیں، جو گھروں میں رہ کے صرف اپنے شوہر کو اور بچوں کو دیکھتی ہیں، وہ کس طرح کی زندگی گزار رہی ہیں؟ دیکھیے، آزاد تو کوئی بھی نہیں ہے اس معاشرے میں. یہ آزاد معاشرہ ہے ہی نہیں. اور جب آپ کہتی ہیں کہ جو عورتیں کام کر رہی ہیں وہ آزاد ہیں، کہاں سے آزاد ہیں؟ سڑکوں پہ کیا ہوتا ہے، بسز میں کیا ہوتا ہے، جہاں کام کرنے جاتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے. تو اور جب ہم اپنا کیس لڑتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، تو پھر ہم پہ ڈیفیمیشن کا بھی چارج لگ جاتا ہے، پھر ہمارے کردار پہ بھی بات ہوتی ہے. تو آزاد تو بالکل نہیں ہے. آزادی تو بہت دور کی بات ہے. ابھی تو ہم جو بنیادی حقوق ہیں وہی نہیں ہم کو مل رہے ہیں. چھوٹی سی بات پہ کیا روٹی گول کیوں نہیں بنی ہے تو اس پہ ہم کو مار دیا جاتا ہے. کسی نے کہا کہ ارے تم اس لڑکے سے کیوں بات کر رہی تھی، تو اس پہ مجھے کاری کر کے مار دیا جاتا ہے. تو یہ تو کوئی آزاد معاشرہ نہیں ہے اور عورتوں کے لیے تو بالکل بھی آزاد نہیں ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ بنے جہاں پہ ہم کو ایک بنیادی حقوق ہمارے سارے مل جائیں.
हजरात आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, अमेरिका से पाकिस्तान आई हुई हैं कुछ दिनों के लिए। मैडम अनीता हैं, शी इज़ अ डॉक्टर। लेट्स सी कि वो हमारे साथ अपने क्या ख्यालात का इजहार करती हैं। जी बहुत शुक्रिया। आपने इंसिस्ट किया। मैं जब पहले यहाँ रहती थी तो उस वक्त ये सब कुछ नहीं होता था। इस साल मैं मौजूद हूँ यहाँ, तो मैं अपनी नीस के साथ, उसने कहा आप चलें। तो मैं अभी तक समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये क्या चीज़ है। देखने में और सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझूंगी कि इसका प्रैक्टिकली क्या इम्पैक्ट है। क्या वाकई औरतों को कोई फ़र्क पड़ रहा है कि कोई रूल्स या लॉज चेंज हो रहे हैं औरतों के लिए, और वो औरतें जो बहुत हमारे यहाँ लोअर तबके से हैं उन तक इसकी पहुँच है। मैंने सुना है कि है और फ़र्क पड़ता है। तो मैं अभी तक इस चीज़ को समझ रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी प्रोग्रेसिव चीज़ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट प्रैक्टिकली that's what I'm interested in, and I don't know, and maybe it is making a difference, and if it is, then they need to expand and they need to include more and more, not only just women. बहुत सारे मर्द हैं जो समझते हैं इस बात को, औरत की ताकत को और औरत की अहमियत को, और औरत मर्द दोनों मिलकर ही घर बनाते हैं, घर चलाते हैं, मुल्क चलाते हैं। तो ये सिर्फ औरत मर्द जो है, वो आपने भी ये बात कही थी, सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, माइनॉरिटीज़ हैं, वो भी, हर कोई वो जिसको अपना हक चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिकलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक, एंड आई वुड लाइक टू सी कि इसका अगर कोई सचमुच में इम्पैक्ट बन रहा है सोसाइटी पे पॉजिटिव, तो वो फिर और होना चाहिए और इसको आगे बढ़ना चाहिए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच। कर रही हैं और क्या क्या हो रहा है यहाँ पर और उनके क्या ख्यालात हैं। जैसे कि अभी मैम ने कहा कि औरत और मर्द दोनों माशरे का हिस्सा हैं। कोई भी गाड़ी दो पहियों के बगैर नहीं चल सकती। किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए दोनों पहियों की ज़रूरत होती है। आज अगर हम देखें कि सिर्फ़ और सिर्फ औरत ही इस मुआशरे को चला रही है तो ये पॉसिबल नहीं है। हमारे साथ हमारे घरों में मौजूद हमारे बाप भाई भी हमारे साथ खड़े हैं। ठीक है, हमारी माएँ हमें स्ट्रेंथ देती हैं, वो हमें सोच देती हैं, लेकिन उनको सपोर्ट करने वाले हमारे भाई और बाप हमारे साथ हैं। आइए देखते हैं कि बाकी ख़वातीन क्या सोचती हैं और वो क्या कहती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस राबिया, ये मीडिया स्टूडेंट्स हैं। आइए इनसे सुनते हैं कि वो अपने ख़यालात का इजहार किस तरह से करती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। औरत मार्च एक्चुअली एक मूवमेंट है जो कि आई डोंट नो उसके बारे में क्या कहना चाहिए, अच्छी चीज़ बुरी चीज़ है, क्योंकि आज भी हम अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं कि हमें अभी भी सड़कों पे खुलेआम चलने के लिए एक मार्च करना पड़ रहा है, हैरेसमेंट से बचने के लिए एक मार्च करना पड़ रहा है, घर से निकलते हुए सोचना पड़ता है 10 बार कि कहीं कोई कुछ हो ना जाए ऐसा वैसा। इक्वालिटी के लिए आज की 2021 हो चुका है, लेकिन आज भी हम लोग इक्वालिटी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, हम लोग एजुकेशन के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, हम लोग इस बात पे फ़ाइट कर रहे हैं कि हमें इक्वालिटी अपने एजुकेशन में, अपने जेंडर में, अपने इवन अपने रिलीजन में नहीं मिलती लोगों के थ्रू। हमारा रिलीजन हमें इक्वालिटी देता है लेकिन लोग उसको नहीं देते। तो हम लोग अभी भी लोगों को हाईलाइट करते करते थक गए, बट स्टिल वी फेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। बट आई होप औरत मार्च 2018 से है 2021 में इसके और ज़्यादा इम्पैक्ट हो, क्योंकि ग्रोथ हो रही है, लोगों में अवेयरनेस हो रही है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि पहले हमें अपने हकूक़ की अवेयरनेस नहीं थी। जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं पता होगी आपको उसको सोल्यूशन नहीं पता होगी। तो अभी तक हमें प्रॉब्लम तो पता चल गई, अब उसके सोल्यूशन निकालने में हम लोग अभी भी लंबा रास्ता है। थैंक यू सो मच मैम।
हैप्पी वुमेंस डे। मिस, आप अपने कमेंट्स हमारे साथ कैसे क्या कहना चाहेंगी आज के दिन के हवाले से? आप एजुकेशन से रिलेटेड हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो क्या कैसा महसूस करती हैं आप एज ए स्टूडेंट? I feel like as a student on behalf of every women, औरतों को आज भी पढ़ाई हमारे मुल्क में वैसे नहीं मिल रही है जैसे मर्दों को मिल रही है. एंड आई थिंक सो आई एम वन ऑफ दोज लकी वंस जिनको ये मौका मिला है कि वो लोग पढ़ाई की तरफ अपना पूरा ड्रीम कर सकती हैं. बट अगर हम लोग अर्बन एरिया से हट के रूरल एरिया की तरफ जाते हैं तो औरतों को कोई पढ़ाई नहीं मिल रही है इस वक्त. मतलब अगर मिल भी रही है तो आप खुद ही लिटरेसी रेट से देख सकते हैं कि औरतें इस वक्त कोई 26% पे भी नहीं आती हैं. बट आई वुड लाइक टू से कि मैं यहाँ पे लास्ट ईयर पहली बार आई थी और आई जस्ट केम हेयर टू चेक कि यहाँ पे क्या होता है. पर मैं सच्ची बात एक बात बताना चाहूँगी हर बंदे को कि ये बैनर से बहुत बड़ी बात है. अगर आप बैनर्स और चार्ट्स तक रहेंगे तो यू वॉन्ट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या रीज़न है ये सब कुछ क्यों हो रहा है. इट इज़ मोर देन दैट. एंड प्लीज़ काइंडली आप लोग खुद आके देखें, बिकॉज मैं खुद आई थी. और जब तक आप लोग समझेंगे नहीं इस बात को और एक मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी पर ही बैठ जाएंगे तो कोई भी किसी को भी हक़ नहीं दे पाएगा. तो आई एम रियली होप कि पाकिस्तान में एक दिन आएगा कि औरतें, वी हैव सच अ टैलेंटेड मैन एंड वुमेन बोथ, ऐसी बात नहीं है, बट औरत को भी डिज़र्व करती है कि वो आगे पहुँचे. साथ यहाँ पे मिस अलीना मौजूद हैं जो कि एक स्टूडेंट हैं. हैप्पी वुमेंस डे मिस अलीना. क्या कहना चाहेंगी? आपने कहा आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप क्या देखती हैं कि आज की स्टूडेंट को कितनी आज़ादी हासिल है या तालीम हासिल करने के जिस भी स्टेज पे हैं, वो प्रोफेशनल स्टेज पे हैं या वो तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रही हैं, आप क्या देखती हैं कि कितना उनको मौका मिलता है, कितने चांसेस हैं उनके लिए? एज़ लाइक जिस तबके से मैं बिलोंग करती हूँ, माशाल्लाह हमें बहुत आज़ादी मिली हुई है और बहुत हमारी जो एंसेस्टर्स, हमारी जो औरतें हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत जंग लड़ी एक तरह से, तो मैं कहूँगी कि अब औरतें बहुत और लड़कियाँ स्पेशली स्टूडेंट्स वगैरह, हम बहुत एक ऐसे एरिया पर हैं जहाँ पे वी आर फ्री टू डू व्हाट वी वांट. हम लोगों को एक मौका मिला है कि हम लोग मीडिया में आ सकें, क्योंकि आप देखें अगर 4 साल पहले देखें तो मीडिया एक ऐसा अभी भी है, एक तौर पे आप कह सकते हैं टैबू एक है कि मीडिया में औरतें आज भी ख़वातीन को जाने से रोका जाता है. ये कहाँ जा रहे हो? लेकिन अब आप देखें एक तब्दीली आ रही है. अब औरतों को पहले कहा जाता था कि आप बाहर नहीं निकल सकती, औरतें अब बाहर निकल के, अब आप देखें, आप यहाँ पे देखें लोग औरतें जब अपनी हक के लिए लड़ रही हैं, और बहुत सारे ऐसे हमने लॉ को चेंज किया है बहुत तरफ से. सो आई थिंक कि तब्दीली आ रही है. आते आते ऑफ कोर्स टाइम लगता है उसके लिए, लेकिन अगर आप स्टेप बैक नहीं करेंगे और आप आगे लड़ते रहेंगे तो ऑफ कोर्स तब्दीली आने में आ जाएगी, आई थिंक. थैंक यू सो मच. एंड बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आप महसूस करती हैं कि आप लोगों को आज़ादी मिली है. आप आज़ादी से अपनी ज़िंदगी को पहले जो कल की खातून थी उसकी निस्बत आज आप बेहतर तौर पे मुआशरे में सर्वाइव कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट. जी, हमारे साथ यहाँ पे एक साहब मौजूद हैं. क्या नाम है आपका सर? शेरोज़. हैप्पी वुमेंस डे. अच्छा, आज मुझे ये बताइए, क्योंकि आप हमारे साथ ख़वातीन के बारे में बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, और मैंने आपको हैप्पी वुमेंस डे इसलिए कहा कि घर में आपकी एक मदर हैं, सिस्टर हैं, ठीक है, तो आप हमें बताएंगे कि आपका आज के दिन के बारे में क्या ख्याल है? आज
میرا یہ خیال ہے کہ یو شوڈنٹ ہیو ون اسپیشل ڈے ایک جو آج ایک خاص دن ہوتا ہے نا, اس کی پہلی بات ہے ضرورت نہیں پڑنی چاہیے تھی, وہ نوبت نہیں پڑنی چاہیے تھی. اب یہ نوبت کیوں پڑ رہی ہے, اب سب کو پتہ ہے کہ جب آپ معاشرے میں جو لیڈیز کام کرنے جائیں, پڑھنے جائیں, ان کو ایک ڈر محسوس ہوتا ہے کہ ان کو کوئی چھیڑ نہ دے, رائٹ. ہم مرد اپنا موبائل والیٹ چابی گھر پہ رکھ دیں, مسئلہ نہیں ہے. عورت اپنا گھر موبائل والیٹ چابی پھر بھی چھوڑے, اس کو پھر بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی ٹارگٹ نہ کرتے. اس کے علاوہ فار ایگزامپل میں اس لیے یہاں پہ کھڑا ہوں کیونکہ فار ایگزامپل فیوچر میں ایسی نوبت نہ ہے جہاں پہ میری بیٹی ایک دن ان چیزوں کے لیے آواز اٹھا رہی ہو. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے یہ سب چیزیں ختم ہو جائے. جبھی تھینک یو سو مچ. آپ کی سوچ جان کے بہت خوشی ہوئی کہ آپ اپنی کل کے جنریشن کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی محفوظ ہو, اس لیے آج آپ اپنی بہن کے ساتھ کھڑے ہیں, آج آپ اپنی مدر کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. آئیے ہم ملتے ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک بہت خوبصورت ہستی موجود ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ان کی کیا رائے ہے آج کے دن کے حوالے سے. ہیپی ویمنس ڈے میم. ہیپی ویمنس ڈے ٹو یو ٹو. کیا نام ہے آپ کا؟ مانیہ شکیل. مس مانیہ کیا کرتی ہیں آپ؟ میں ایک جرنلسٹ ہوں. اچھا, آج کے دن کے حوالے سے آپ ایک جرنلسٹ ہیں, تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ آج خاتون کو کہاں دیکھتی ہیں؟ آج کی عورت کہاں ہے؟ کتنی آزادی ہے اس کے پاس معاشرے میں سروائیو کرنے کی اور اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی؟ جی, اگر خواتین کی بات کی جائے کہ خواتین کے آج وہ کس مقام پر ہیں یا آج کس جگہ کھڑی ہیں, تو شاید میں اور آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ عورت آج کہاں کھڑی ہے. یعنی کہ ہمیں اتنی آزادی موجود ہے کہ ہم میڈیا پہ کام کر رہے ہیں, ہمیں اتنی آزادی موجود ہے کہ بطور صحافی ہم اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. تو ہر عورت کو اتنی آزادی موجود ہے, لیکن ہم ہر عورت کی تو بات نہیں کہیں گے, لیکن ہمارے معاشرے میں کیونکہ مختلف طبقے موجود ہیں تو ہر طبقے میں کچھ ایسی چیزیں نظر نہیں آتی. لیکن جس کلاس سے میں اور آپ تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ مڈل کلاس سوسائٹی میں ہمیں یہ آزادی حاصل ہے کہ ہم اپنی رائے کا اظہار کر سکیں. میم, آپ نے کہا کہ ایز اے جرنلسٹ ہم آزاد ہیں, تو کائنڈلی آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایز اے جرنلسٹ آپ کتنا آزاد خود کو محسوس کرتی ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایز اے جرنلسٹ کسی بھی سنسان راستے میں کسی بھی جگہ پہ جا کے کسی مظلوم کے لیے کھڑی ہو کے بول سکتی ہیں؟ کتنا آزاد ہے کہ جرنلسٹ کو آپ کتنا آزاد محسوس کرتی ہیں؟ بینگ اے جرنلسٹ اگر میں اس کا آنسر دوں تو ہاں, میں ایک بطور صحافی خود کو بہت آزاد محسوس کرتی ہوں کہ میں کسی بم بلاسٹ والی جگہ پہ بھی موجود ہوتی ہوں, میں کسی ایسی جگہ پہ بھی موجود ہوتی ہوں جہاں پہ بلڈنگ گری ہوتی ہے اور وہاں لوگ اپنے گھر کا سامان تلاش کر رہے ہوتے ہیں. میں ایسی جگہ پہ بھی موجود ہوتی ہوں جہاں پہ لوگ دھرنا دے رہے ہوتے ہیں. میں ایسی جگہ پہ بھی موجود ہوتی ہوں جہاں پہ لوگ موسم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہاں, میں بطور صحافی خود کو ایک آزاد صحافی محسوس کرتی ہوں. ہماری سوسائٹی میں اب اتنا چینج آ چکا ہے کہ وہ ایک عورت کو بطور صحافی ایکسیپٹ کر سکے. جہاں آپ نے بات کی کہ سوسائٹی کی, تو ہاں, سوسائٹی میں بہت سی چیزیں موجود ہیں, ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں جو مشکلات بھی ہمارے لیے پیدا کرتے ہیں. کہ اچھا, جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی ہے اور کیمرہ نکلا ہوا ہے تو وہ لوگ آ کے کھڑے ہو جائیں گے, پیچھے سے اشارے کریں گے. اس قسم کی حرکتیں ہم برداشت بھی کرتے ہیں اور اگنور بھی کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو لگی رہتی ہیں. لیکن بطور صحافی مجھے اگر بات کروں تو یہاں تک آنے کے لیے بہت سپورٹ کرنے والے بہت سے مرد حضرات ہیں, اور ہاں, تنگ کرنے والے بھی مرد حضرات ہیں اور سپورٹ کرنے والے بھی مرد حضرات ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ مردوں کا معاشرہ برا ہے. ہماری سوسائٹی کا ہر شخص حصہ ہے اور ہر شخص اپنی سوچ کے مطابق, اپنی عقل کے مطابق, اپنی علم کے مطابق, اپنی تعلیم کے مطابق ہی پرفارم کر رہا ہوتا ہے.
साथ हमारे साथ यहाँ पे फ्रेयर हॉल में आज मौजूद हैं मैडम गजाला शफीक. आइए उनसे बात करते हैं. हैप्पी वुमेंस डे मैम. थैंक यू BTL TV. तमाम BTL देखने वाले बहनों को मेरी तरफ से औरतों का आलमी दिन इंटरनेशनल वुमेंस डे मुबारक हो. थैंक यू सो मच मैम. क्या आज हमें आप बताएंगी कि आज की खातून को आप कहाँ पे देखती हैं? आज की खातून बाहर निकलते हुए कितना महफूज महसूस करती है? कहने को तो हम 21वीं सदी में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन हालात वही हैं कि हमारे यहाँ जो तालीम याफ्ता लोग हैं, मर्द हैं, वो भी ज़हनी पसमानदगी का शिकार हैं. औरत तभी अपने आप को आज़ाद महसूस करेगी, महफूज महसूस करेगी, ताकतवर महसूस करेगी, जब उसका माशरा उसको एक ताकतवर, बाइख्तियार और कुव्वत से भरा हुआ इंसान समझेगा. बदकिस्मती है, पाकिस्तान में 50% से ज़्यादा आबादी जो है वो औरतों पर मुश्तमिल है, लेकिन उसी औरत को सिर्फ़ और सिर्फ जो है घर की चार दीवारी के अंदर महदूद कर दिया गया है. और अगर औरत बाहर निकलने की जुर्रत करती है तो और रोड पर उसके बच्चों के सामने रेप किया जाता है, तो तालीम याफ्ता शख्स जो शहर का मुहाफिज है, CCBO, वो बजाय इसके कि सड़कों को महफूज बनाए, घरों को महफूज बनाए, शाहराहों को महफूज बनाए, जो उसकी ड्यूटी, जिसकी वो तनख्वाह ले रहा है. मेरा जो रेफरेंस है वो लाहौर का जो वाक़या हुआ था, तो CCPO साहब ने कहा ये औरत रात के इस पहर क्यों निकली, ये औरत अकेली क्यों निकली, ये औरत इस रोड से क्यों निकली. यानी ज़्यादती भी औरत पर हो, विक्टिमाइज भी औरत को किया जाए, फिर असूल और ज़वाबत भी उसको पढ़ाए जाएं, बजाय इसके कि कौम से माफ़ी मांगने कि हम शाहराहों को महफूज नहीं कर सके. आज की औरत जो पाकिस्तान की औरत है वो बहुत मेहनत कश औरत है. वो तो रिक्शा चलाकर भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है, वो तो रिक्शा चलाकर भी अपने खामिंद का साथी बनना चाहती है, लेकिन माशरा ना उसको घर में तहफ़्फ़ुज़ देता है, ना उसको रोड पर तहफ़्फ़ुज़ देता है, ना यूनिवर्सिटी में तहफ़्फ़ुज़ है, ना वर्क प्लेस पे तहफ़्फ़ुज़ है, ना उसको वेजिस बराबर की दी जाती हैं. यही सबब है कि आज की औरत मजबूर है कि वो रोड पर निकले और अपनी आवाज़ को बुलंद करे. थैंक यू सो मच मैम. आपने बहुत खूबसूरत बातें की. आपने हमें बताया कि अगरचे हम महसूस करते हैं कि आज की औरत बहुत ज़्यादा आज़ाद है, उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बहुत से मौके मिल रहे हैं, लेकिन वहीं पे हम ये भी देखते हैं कि जहां हमारे घर का ही मर्द देखता है कि औरत उससे ज़्यादा सैलरी लेके घर आ रही है, वो उससे ज़्यादा शोहरत पा रही है सोसाइटी में, वहीं पे उस मर्द की मर्दानगी मजरूह होने लगती है. वो ये महसूस करता है कि अब इस औरत को किसी न किसी बहाने से हमें बांधना है, इसे घर के अंदर महदूद करना है. और अगर वो औरत अपने आप को निढाल करते हुए अपने घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी करके उसके बावजूद बाहर निकलने की कोशिश करे, तो ऐसे ही बुरी सोच वाले, पसमानदा सोच रखने वाले मर्द उस औरत को, उसके हौसलों को तोड़ने के लिए मौजूद होते हैं. खुदा करे कि वो वक्त आए कि हमारे मुआशरे की औरत हकीकत में आज़ादी से बाहर निकल पाए. खुदा करे कि वो वक्त आए जब हमारी बेटियां दिन में या रात में किसी भी वक्त किसी भी जगह पे जाते हुए खौफ महसूस ना करें, उन्हें ये डर ना हो कि मुझे क्या करना है, मुझे घर से निकलने से पहले अपनी हिफाजत का इंतज़ाम करना है. मैडम, क्या आप हमें ये बताना चाहेंगी कि जैसा हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने औरत के लिए बहुत सारे बैरियर्स तोड़े, आज हमारे चर्च में औरत का क्या मकाम है? क्या आज हमारी औरत को चर्च में आज़ादी हासिल है? क्या वो आज़ादी से कलाम कर सकती है, या वहाँ पे भी उसे आज भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है? थैंक यू वेरी मच. खुदावंद यीशु मसीह का तो जब हम उनकी ज़िंदगी में ही देखते हैं तो बहुत सी ख़वातीन जो तजारत करती थी, लुदिया का जिक्र मिलता है और बेशुमार ख़वातीन का जिक्र मिलता है कि वो अपने रुपए पैसे से भी
यसु मसीह की खिदमत करती थी, शहरों शहरों करिया करिया वो उनके साथ जाती थी। यसु मसीह के ज़माने की औरत, और अगर आप इमसाल 31 बाब में जो औरत का बयान किया गया है, लैमुल बादशाह की माँ की बातों का जिक्र है, फिर वहाँ जो औरत दिखाई गई है वो सारे फैसले करने के लिए बाख्तियार है, वो प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए, वो अपना लिबास लेने के लिए, वो कारोबार करने के लिए, वो हर चीज़ के लिए आज़ाद है। लेकिन मुझे लगता है ये आज़ादी सिर्फ बाइबल के सफ़ों तक महदूद होकर रह गई है। चर्च ने तो उस औरत को, जिसको यसु मसीह ने जी उठने के बाद कहा कि जाओ जाकर भाइयों को बता दो कि मसीहा जी उठा है, उसके पर तो खिदमत के कदगन लगा दिए हैं। खिदमत के लिए औरत को हमेशा वो पुलपट दिया जाता है जो नीचे होता है, मर्द हजरात ऊंचे पुलपट पर खड़े होते हैं, फिर एज अ फुल पास्टर उनको खिदमत नहीं करने दी जाती। जिस मसाइल का शिकार पाकिस्तानी औरत है, वो उन्हीं मसाइल का शिकार चर्च की भी औरत है, जबकि चर्च में औरत को ये आज़ादी हासिल है कि वो पूरी आज़ादी से इबादत करती है। उसको ये कदगन नहीं है कि वो इबादत की जगह पे नहीं आ सकती, जनाजे में नहीं जा सकती, शादी में नहीं जा सकती। जो हमारी मजहबी तालीमात है वो तो उसको बाख्तियार बनाती हैं, उसकी गवाही भी पूरी है, उसको कम अक्ल नहीं कहा गया, उसको आधी गवाही नहीं दी गई बल्कि उसको पूरी गवाही दी गई है। अनफॉर्चुनेटली हम माशरे से मुतासर होकर अपनी ख़वातीन के साथ वही सलूक कर रहे हैं जो माशरा उनके साथ कर रहा है। हमें बहुत ज़्यादा तब्दीली की ज़रूरत है विद इन चर्च। थैंक यू सो मच मैम। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.